کوفہ کی ٹھنڈی اور خاموش رات اپنے سائے پھیلا چکی ہے۔ گلیاں ویران ہیں، دروازے بند ہو چکے ہیں اور چراغ ایک ایک کر کے بجھ رہے ہیں، لیکن ایک مکان ایسا ہے جہاں ابھی روشنی باقی ہے۔ اس گھر میں ایک عورت بیدار بیٹھی ہے، چہرے پر اضطراب، آنکھوں میں خوف اور دل میں ایک ایسا فیصلہ جو تاریخ پر گہرا نشان چھوڑنے والا ہے۔ اس کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہے، عام سا پیالہ، مگر اس کے اندر وہ شے ہے جو صرف ایک انسان نہیں بلکہ پوری امت کے دل کو زخمی کرنے والی ہے۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھتی ہے جیسے اپنے ضمیر کے ساتھ کشمکش میں مبتلا ہو، پھر دھیرے دھیرے وہ مشروب میں زہر شامل کر دیتی ہے، ایسا زہر جو فوراً جان نہیں لیتا بلکہ جسم کے اندر آگ لگا دیتا ہے، خون کو بے چین کرتا ہے اور جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ مگر یہ زہر جس ہستی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نور نظر ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، امت کے محبوب امام حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور یہ زہر دینے والی کوئی بیرونی دشمن نہ تھی، نہ کوئی اجنبی عورت، بلکہ گھر کے اندر سے تعلق رکھنے والی ان کی زوجہ تھی، جسے تاریخ جادہ بنت الاشس کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جادہ بنت الاشس آخر کون تھی؟ وہ اہل بیت کے قریب کیسے پہنچی؟ اس نے اعتماد کیسے حاصل کیا؟ اور پھر وہ اس دردناک واقعے کا حصہ کیسے بنی؟ کیا یہ صرف ایک شخصی لالچ تھی یا اقتدار کے ایوانوں میں تیار ہونے والی خاموش سازش؟ آخر کس نے ایک بیوی کے ہاتھوں ایسا جان تیار کروایا جس نے تاریخ کو غمگین کر دیا؟ جادہ بنت الاشس نے کس کے اشارے پر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا؟ آخری وقت میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور جادہ بنت الاشس کا انجام کیا ہوا؟ آج ہم اسی پوشیدہ حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے، جہاں ایک پیالے میں صرف مشروب نہیں بلکہ پوری امت کا درد پوشیدہ تھا۔ جادہ بنت الاشس اسلامی تاریخ کا ایک ایسا نام ہے جس کا ذکر خصوصاً حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے دور کے تناظر میں کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی دنیا سیاسی تبدیلیوں، داخلی اختلافات اور اقتدار کی کشمکش سے گزر رہی تھی۔ اسی نازک ماحول میں جادہ بنت الاشس کا نام تاریخ میں سامنے آتا ہے، اس لیے اس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس کے خاندانی اور سماجی پس منظر کو جاننا ضروری ہے۔ جادہ بنت الاشس بن قیس الکندی کی بیٹی تھی اور عرب کے مشہور قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتی تھی۔ قبیلہ کندہ یمن کے قدیم، بااثر اور معروف قبائل میں شمار ہوتا تھا، اور اسلام سے پہلے بھی اس کے سردار عرب کے مختلف علاقوں میں اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ عرب معاشرے میں نسب اور قبیلہ انسان کی شناخت، عزت اور مقام کا بنیادی ذریعہ سمجھے جاتے تھے، اور کسی سردار کے گھر پیدا ہونا خود ایک نمایاں سماجی مرتبے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جادہ بھی ایسے ہی ایک باوقار گھرانے میں پیدا ہوئی، جہاں عزت، قبائلی وقار اور سماجی حیثیت زندگی کا اہم حصہ تھے۔ اس کے والد الاشس بن قیس اسلامی تاریخ کی ایک معروف شخصیت تھے۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار رہے اور بعد میں اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جزیرہ عرب میں پیدا ہونے والے سیاسی اور قبائلی حالات میں بھی ان کا نام نمایاں طور پر سامنے آتا ہے، مگر بعد ازاں وہ اسلامی ریاست سے وابستہ ہو گئے اور کوفہ کے معزز افراد میں شمار ہونے لگے۔ تاریخی کتب جیسے تاریخ الطبری اور البدایہ والنہایہ میں ان کا ذکر ایک بااثر قبائلی رہنما کے طور پر ملتا ہے، جنہیں اپنے قبیلے میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ جادہ کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں قبائلی سیاست، سماجی تعلقات اور طاقت کے توازن کی گفتگو معمول کا حصہ تھی۔ ابتدائی اسلامی دور کا عرب معاشرہ مکمل طور پر قبائلی نظام پر قائم تھا، اور بڑے خاندانوں کے تعلقات اکثر نکاح کے ذریعے مضبوط کیے جاتے تھے۔ سرداروں کی بیٹیاں محض گھریلو حیثیت نہیں رکھتی تھیں، بلکہ ان کے رشتے قبائل کے درمیان اعتماد اور اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ سمجھے جاتے تھے۔ الاشعث بن قیس بعد میں کوفہ میں آباد ہو گئے، جو اس وقت اسلامی خلافت کا ایک اہم سیاسی اور عسکری مرکز بن چکا تھا۔ کوفہ مختلف قبائل کا شہر تھا، جہاں سیاسی معاملات، قیادت کے سوالات اور سماجی اختلافات موجود رہتے تھے۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے والی شخصیات لازماً اپنے ارد گرد کے حالات سے متاثر ہوتی تھی،
और जादा बिन्त अल-अशअस की जिंदगी भी इसी मुआशरती फजा में गुजरी। तारी मसादिर जादा बिन्त अल-अशअस की इब्तिदाई जिंदगी की तफसीलात ज्यादा बयान नहीं करते, ताहम उसका खानदानी पस मंजर वाजे करता है कि वो एक मुअज़्ज़ज़ और असर रखने वाले खानदान की बेटी थी। उसकी जिंदगी का असल जिक्र उस वक्त नुमाया होता है जब उसका नाम हजरत इमाम हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा के साथ निकाह के हवाले से तारीख में आता है, जो उस दौर के समाजी और कबायली निजाम के मुताबिक एक अहम ताल्लुक समझा जाता था। ये बात भी जरूरी है कि जादा बिन्त अल-अशअस के बारे में मुअर्रिखीन के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है, खुसूसन हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु की वफात के वाकयात के हवाले से। बाज रिवायात में उसका जिक्र मिलता है, जबकि बाज अहले इल्म उन रिवायात के असनाद पर गुफ्तगू करते हैं। यूं जादा बिन्त अल-अशअस को तारीख में एक ऐसे किरदार के तौर पर देखा जाता है जो एक बाअसर कबायली खानदान में पैदा हुई, कूफा के सियासी माहौल में परवान चढ़ी और बाद में इस्लामी तारीख के एक निहायत हसास बाब से उसका नाम वाबस्ता हो गया। उसकी जिंदगी का अगला मरहला वो था जब उसका ताल्लुक अहले बैत के घराने से कायम हुआ और यही ताल्लुक आने वाले वाकयात में हरी अहमियत इख्तियार कर गया। जादा बिन्त अल-अशअस के खानदानी पस मंजर को अगर गहराई से देखा जाए तो ये वाज़ेह होता है कि उसका ताल्लुक सिर्फ एक मुअज़्ज़ज़ कबीले से नहीं, बल्कि ऐसे सियासी घराने से था जो अपने वक्त के बदलते हालात में मुसलसल असरअंदाज होता रहा। अरब मुआशरे में बास खानदान ऐसे होते थे जिनकी हैसियत सिर्फ कबायली क़यादत तक महदूद नहीं रहती थी, बल्कि वो बड़े सियासी फैसलों में भी किरदार अदा करते थे, और अल-अशअस बिन कैस का खानदान उन्हीं नुमायां घरानों में शुमार किया जाता था। अल-अशअस बिन कैस अल-किंदी अपनी जहानत, कबायली असर और सियासी फहम की वजह से अरब सरदारों में पहचाने जाते थे। वो उन अफराद में शामिल थे जो हालात के मुताबिक अपनी हिकमत अमली तब्दील करने की सलाहियत रखते थे। इब्तिदाई इस्लामी दौर में जब मुख्तलिफ कबाइल नई इस्लामी रियासत के साथ अपने ताल्लुकात तय कर रहे थे, उस वक्त अल-अशअस बिन कैस ने भी अपनी हैसियत बरकरार रखने के लिए सियासी बसीरत का मुजाहरा किया। यही वजह थी कि बाद के जमाने में वो कूफा के ताकतवर और बाअसर अफराद में शामिल हो गए। कूफा उस दौर में सिर्फ एक आबाद शहर नहीं था, बल्कि ताकत के तवाजुन का मरकज बन चुका था। यहां फौजी लश्कर मौजूद थे, कबायली सरदार आबाद थे और खिलाफत के मामलात पर असर डालने वाले लोग यहीं से उभरते थे। मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान खामोश रकाबत जारी रहती थी और हर गिरोह अपनी सियासी अहमियत बरकरार रखने की कोशिश करता था। ऐसे माहौल में बाअसर खानदानों के अफराद अक्सर इक़्तिदार के करीब समझे जाते थे। अल-अशअस बिन कैस का घर उन्हीं सियासी सरगर्मियों का हिस्सा था। उनके यहां आने जाने वाले अफराद आम लोग नहीं थे, बल्कि कबायली नुमाइंदे, सिपाही सरदार और बाअसर शख्सियात हुआ करती थी। घरेलू माहौल भी इस सियासी फजा से अलग न था। फैसलों, इत्तेहादों और मुस्तकबिल के हालात पर गुफ्तगू मामूल का हिस्सा थी। यही वो माहौल था जिसमें जादा बिन्त अल-अशअस ने शऊर की आंख खोली और दुनिया को समझना शुरू किया। उस जमाने में सरदारों की बेटियों को महज घरेलू जिम्मेदारियों तक महदूद नहीं समझा जाता था, बल्कि उन्हें खानदान की इज्जत और मफादात का हिस्सा तसव्वुर किया जाता था। उनकी तरबियत इस अंदाज में होती थी कि वो अपने कबीले की हैसियत और वकार को मुकद्दम रखें। खानदान की ताकत को बरकरार रखना एक इज्तिमाई जिम्मेदारी समझी जाती थी और यही सोच आने वाली नस्लों में मुंतकिल होती थी। कूफा की सियासी फजा खास तौर पर पेचीदा थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत के बाद शहर मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम हो चुका था। वफादारियां वाज़ेह नहीं रही थीं और सियासी हालात तेजी से बदल रहे थे। ऐसे हालात में बाअसर खानदान अक्सर मुस्तकबिल के इम्कानात को देखते हुए अपने ताल्लुकात उस्तवार करते थे। अल-अशअस बिन कैस का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता था जो बदलते हालात को समझने और अपने मकाम को महफूज रखने की कोशिश करते रहे। बाज मुअर्रिखीन इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कूफा के कई सरदार बज़ाहिर एक फरीक के साथ होते थे, मगर पस मंजर में मुख्तलिफ सियासी क़ुव्वतों से राब्ते रखते थे। इस तर्ज सियासत ने शहर के माशरती माहौल को गैर यकीनी बना दिया था। एतमाद कमजोर हो रहा था और मफादात अक्सर उसूलों पर गालिब आते दिखाई देते थे। ऐसे सियासी और समाजी माहौल में परवरिश पाने वाली जादा बिन्त अल-अशअस एक ऐसे घराने की नुमाइंदा थी जहां ताकत, असर और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी जिंदगी का हिस्सा थे। यही पस मंजर बाद के वाकयात को समझने में अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि तारीख के बाज बयानात के मुताबिक आने वाले जमाने में जाती ख्वाहिशात, सियासी मफादात और दुनियावी फायदे एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आते हैं। यही खानदानी और माशरती बुनियाद आगे चलकर इस कहानी को इस मकाम तक ले जाती है जहां एक निकाह
सिर्फ घरेलू ताल्लुक नहीं रहता, बल्कि तारीख के बड़े वाकयात का हिस्सा बन जाता है। हजरत इमाम हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा की जिंदगी इस्लामी तारीख के उस दौर से ताल्लुक रखती है जब उम्मत शदीद सियासी आजमाइशों से गुजर रही थी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के साहबजादे थे और मुसलमानों के दिलों में गैर मामूली एहतराम रखते थे। आपकी शख्सियत सब्र, बुर्दबारी और उम्मत के इत्तेहाद की ख्वाहिश की अलामत समझी जाती थी। इसी वजह से आपकी जिंदगी का हर पहलू, खा वो सियासी हो या जाती, मुसलमानों की तवज्जो का मरकज रहता था। उस जमाने में निकाह महज घरेलू ताल्लुक नहीं, बल्कि कबायली और समाजी इत्तेहाद का अहम जरिया समझा जाता था। अरब मुआशरे में बाअसर खानदानों के दरमियान रिश्ते कायम करना इस्तेहकाम पैदा करने का एक मारूफ तरीका था। इसी पस मंजर में जादा बिन्तुल अशअथ का निकाह हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु से हुआ। तारीखी मसादर में इस निकाह का जिक्र मिलता है और उसे उस वक्त के मुआशरती निज़ाम के मुताबिक एक अहम ताल्लुक तसव्वुर किया जाता है। यह रिश्ता ऐसे दौर में कायम हुआ जब कूफा इस्लामी दुनिया का नुमाया सियासी मरकज बन चुका था। मुख्तलिफ कबाइल यहाँ आबाद थे और हर गिरोह अपनी हैसियत और असर को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था। अहले बैत का मकाम मुसलमानों के नज़दीक रूहानी और अखलाकी एतबार से बुलंद था, जबकि कबाइली सरदार सियासी ताकत के तवाजुन को अहम समझते थे। ऐसे हालात में इस निकाह को एक ऐसे ताल्लुक के तौर पर देखा गया जिससे बाअसर हलकों के दरमियान कुर्बत पैदा हो सकती थी। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु अपनी नर्म मिजाजी और आली अखलाक के बायस मशहूर थे। तारीखी रिवायात के मुताबिक आप इख्तलाफात को शिद्दत देने के बजाय सुलह और दरगुजर को तरजीह देते थे। आपकी जिंदगी का नुमाया पहलू यही था कि आपने मुसलमानों के दरमियान खून रेजी रोकने के लिए खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार की और सुलह को कबूल किया। इस फैसले ने वक्ती तौर पर सियासी कशीदगी को कम जरूर किया, मगर मुआशरे के अंदर मौजूद बेचैनी मुकम्मल तौर पर खत्म न हो सकी। सुलह के बाद का जमाना बज़ाहिर सुकून का दौर था, लेकिन पस मंजर में मुख्तलिफ सियासी गिरोह मुस्तकबिल के हालात पर नजर रखे हुए थे। क़यादत के सवालात अभी खत्म नहीं हुए थे और कई हल्के आने वाले वक्त के इम्कानात का जायजा ले रहे थे। ऐसे माहौल में अहले बैत से वाबस्ता हर शख्सियत गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गई थी, क्योंकि अवामी मोहब्बत और एहतराम का मरकज अब भी यही खानदान था। बाज तारीखी रिवायात इशारा करती हैं कि इसी जमाने में हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु के गिर्द हालात आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा होना शुरू हुए। अगरचे जाहिरी तौर पर अमन कायम था, मगर सियासी मफादात रखने वाले अफराद मुख्तलिफ रास्तों की तलाश में थे। घर के अंदर मौजूद ताल्लुकात को बाज अनासिर ने एक मुमकिना कमजोर पहलू के तौर पर देखा। वक्त गुजरने के साथ यह इज़्दवाजी ताल्लुक सिर्फ एक घरेलू रिश्ता ना रहा, बल्कि तारीख के वाकयात में इसका जिक्र बढ़ने लगा। बाज मुअर्रिखीन के मुताबिक इसी दौर में ऐसे रवाबित और पैगामात का आगाज हुआ जिन्होंने बाद के वाकयात की बुनियाद रखी। यही वो मरहला था जहां हालात ने खामोशी से रुख बदलना शुरू किया। एक ऐसा दौर जिसमें बज़ाहिर सुकून था, मगर अंदरूनी सतह पर बेइतमादी, गिफ़ादात की कशमकश मौजूद थी। आने वाले दिनों में यही फजा एक ऐसे वाक़े की तरफ बढ़ने वाली थी जिसने इस्लामी तारीख को गहरे दुख में मुब्तला कर दिया। इसी मकाम से कहानी अगले मरहले में दाखिल होती है, जहां साजिश, लालच और खुफिया मंसूबाबंदी के तस्करे तारीख के सफ़हात में नुमायां होना शुरू होते हैं। सुलह के बाद इस्लामी दुनिया बज़ाहिर सुकून में आ चुकी थी, जंग रुक चुकी थी, खून रेजी थम गई थी और उम्मत एक बड़े तसादुम से बच गई थी। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु ने इख्तदार से दस्तबरदारी इख्तियार करके मुसलमानों के इत्तेहाद को तरजीह दी, मगर सियासी हकीकत ये थी कि हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं हुए थे। इख्तदार का मसला वक्ती तौर पर हल हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु अगरचे अमली सियासत से अलग हो चुके थे, लेकिन मुसलमानों के दिलों में उनकी मोहब्बत और एहतराम पहले से ज्यादा मजबूत था। लोग उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और अहले बैत के नुमाइंदे के तौर पर देखते थे। यही मकाम उन्हें आम शख्सियत से कहीं बुलंद बना देता था। यही इज्जत बाज ताकतवर हलकों के लिए मुस्तकबिल का एक गैर यकीनी सवाल भी बन रही थी। इख्तदार हमेशा इस्तेहकाम चाहता है और इस्तेहकाम के रास्ते में मौजूद हर मुमकिन खतरे को खत्म करने की कोशिश की जाती है। इसी सोच ने आहिस्ता आहिस्ता एक खामोश मंसूबे को जन्म दिया। खुली जंग मुमकिन नहीं थी,
क्योंकि हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ कोई तलवार उठाना पूरे आलम इस्लाम को हिला सकता था। इसलिए रास्ता वो चुना गया जो सबसे कम दिखाई देता है, घर के अंदर का रास्ता। निगाह उस शख्सियत पर जा ठहरी जो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु के सबसे करीब थी, जादा बिन्तिल अशथ। इख्तदार के ऐवानों से एक पैगाम खामोशी से उस तक पहुंचाया गया। दौलत, आसाइश और मुस्तकबिल के वादे उस पैगाम का हिस्सा थे। उसे यकीन दिलाया गया कि अगर वो एक मखसूस कदम उठाए तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। मालो दौलत के साथ एक ऐसे निकाह का वादा भी किया गया जो उसे अरब के ताकतवर तरीन खानदानों में शामिल कर सकता था। यह पेशकश सिर्फ एक आजमाइश नहीं थी, बल्कि किरदार का इम्तहान थी। दुनियावी लालच और वक्ती फायदा अक्सर इंसान के फैसलों पर गालिब आ जाता है। जादा बिन्तिल अशथ भी इसी कशमकश का शिकार हुई। एक तरफ वो घर था जिसने उसे इज्जत दी थी, और दूसरी तरफ इख्तदार और दौलत की चमक थी जो मुस्तकबिल की नई तस्वीर दिखा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ये लालच फैसला बन गया। साजिश तलवारों से नहीं बनी, बल्कि खामोशी से तैयार हुई। न लश्कर हरकत में आए, न मैदान सजे, सब कुछ पर्दे के पीछे तय हुआ। एतमाद को हथियार बनाया गया और कुर्बत को रास्ता। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का नाम बाज तारीखी रिवायात में इसी मंसूबे के साथ जोड़ा जाता है, जहां मकसद ये बयान किया जाता है कि मुस्तकबिल में इख्तदार के रास्ते में कोई बड़ी रुकावट बाकी न रहे। वादा वाज़ेह था, इनाम बड़ा था, और काम ऐसा जिसे अंजाम देने वाला बज़ाहिर किसी शक के दायरे में ना आता। घर के अंदर से उठने वाला कदम सबसे महफूज समझा गया। इसी लम्हे तारीख ने खामोशी से रुख बदल लिया। एक बीवी, एक एतमाद और एक फैसला जो आने वाले दिनों में उम्मत मुस्लिमा के लिए गहरे सदमे का सबब बनने वाला था। साजिश अपने अंजाम के करीब पहुंच चुकी थी, मगर मदीना के उस पुरसुकून घर में किसी को अंदाजा ना था कि आने वाले दिन इस्लामी तारीख के इंतहाई दर्दनाक लम्हात में शुमार होने वाले हैं। हजरत इमाम हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा अपनी मामूल की जिंदगी गुजार रहे थे। इबादत, लोगों की खैरखाही और उम्मत के इत्तेहाद की फिक्र आपकी जिंदगी का मरकज थी। बज़ाहिर हालात मामूल के मुताबिक थे, लेकिन खामोशी के पर्दे में एक ऐसा वाकया जन्म ले चुका था जो जल्द पूरी उम्मत को गम में मुब्तला करने वाला था। घर का माहौल सादगी और वक़ार का आईनादार था। अहले बैत के उस घर में मोहब्बत, एहतराम और एतमाद बुनियादी सुतून थे। जादा बिन्तिल अशाथ इसी घर का हिस्सा थी, मगर अब वो एक ऐसे फैसले के बोझ के साथ जिंदगी गुजार रही थी जिसके नताइज बहुत जल्द जाहिर होने वाले थे। वो कदम जो खामोशी से उठाया गया, तारीख के एक अजीम सानेहे में बदलने वाला था। एक दिन हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु को खाने या मशरूब के जरिए जहर दिया गया। यह अमल इस कदर खामोशी से अंजाम पाया कि इब्तिदा में किसी को शक तक ना हुआ। न कोई हमला हुआ, न कोई बैरूनी दुश्मन सामने आया। खतरा उसी जगह से उठा जहां सबसे ज्यादा एतमाद मौजूद था। कुछ ही वक्त गुजरने के बाद जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु शदीद तकलीफ महसूस करने लगे। जिस्म कमजोर होने लगा और बीमारी की कैफियत तेजी से बढ़ने लगी। इब्तिदा में उसे आम अलालत समझा गया, मगर जल्द वाज़ेह हो गया कि मामला मामूली नहीं। दर्द की शिद्दत बढ़ती गई और आपकी हालत तशवीशनाक होती चली गई। तारीखी रिवायात में बयान होता है कि जहर इंतहाई मोहलिक था। उसके असर से अंदरूनी आज़ाब बुरी तरह मुतासिर हुए। तकलीफ इस कदर शदीद थी कि बाज़ औक़ात आप खून की क़े फरमाते थे। बयान किया जाता है कि जहर के असर से जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे थे, जिसे देखकर अहले खाना पर लर्जा तारी हो जाता था। यह मंजर अहले बैत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु सब्र और सुकून के साथ इस अजियत को बर्दाश्त करते रहे। मदीना में खबर फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे शदीद बीमार हैं। लोग परेशान हो गए, दुआएं की जाने लगी और हर दिल बेचैन था। अहले बैत के घर में गम, इस्तराब की फजा कायम हो गई। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अपने भाई की तैमारदारी में मुसलसल मौजूद रहे और उनकी तकलीफ देखकर गहरे रंज में मुब्तला थे। बीमारी के दिनों में हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु को अंदाजा हो चुका था कि यह आम बीमारी नहीं, बल्कि जहर का असर है।
इसके बावजूद आपने किसी किस्म के हंगामे या इंतकाम की इजाजत नहीं दी। आपकी सबसे बड़ी फिक्र ये थी कि कहीं आपकी वजह से उम्मत दोबारा इख्तलाफ और खून रेजी का शिकार ना हो जाए। जब तकलीफ शिद्दत इख्तियार कर गई तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु आपके पास तशरीफ लाए और अर्ज किया, मेरे भाई, आपको जहर किसने दिया है? आपने फरमाया, क्या तुम उसे कत्ल करना चाहते हो? हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, जी हां। आपने फरमाया, अगर मुझे जहर देने वाला वही है जो मेरे ख्याल में है तो अल्लाह उसे सख्त सजा देगा, और अगर वो नहीं है तो मैं नापसंद करता हूं कि मेरे बदले में किसी बेगुनाह को कत्ल किया जाए। बिल आखिर वो लम्हा आ पहुंचा जब मदीना गम में डूब गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इस दुनिया से रुखसत हो गए। अहले बैत पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और मुसलमानों ने एक ऐसी शख्सियत को खो दिया जो सुलह, हिल्म और इत्तेहाद की अलामत थी। इस वाक़े के बाद जादा बिन्तिल अशथ का नाम हमेशा के लिए इस सानहे के साथ वाबस्ता हो गया। कहा जाता है कि जिस दुनियावी फायदे और वादे के लिए यह कदम उठाया गया वो उस शक्ल में कभी हासिल ना हो सका जिसकी उम्मीद की गई थी। वक्ती लालच ने तारीख में दायमी बदनामी की सूरत इख्तियार कर ली। यूं एक खामोश साजिश अपने अंजाम तक पहुंची। ना जंग हुई, ना तलवारें उठी, मगर उम्मत एक अजीम नुकसान से दो चार हो गई। ये वाकया तारीख में एक गहरी इबरत बनकर बाकी रह गया कि कभी कभी सबसे बड़ा जख्म बाहर से नहीं बल्कि एतमाद के अंदर से लगता है। हजरत इमाम हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा की वफात के बाद मदीने मुनव्वरा गम में डूब गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की जुदाई मुसलमानों के लिए नाकाबिले बयान सदमा थी। अहले बैत के घर से उठने वाला ये गम सिर्फ एक खानदान का नहीं बल्कि पूरी उम्मत का गम बन गया। वो शख्सियत जिसने इख्तदार के बजाय उम्मत के इत्तेहाद को तरजीह दी अब दुनिया में मौजूद न रही। वक्त गुजरने के साथ इस सानहे के पस मंजर पर गुफ्तगू होने लगी और जादा बिन्तिल अशथ का नाम इस वाक़े के साथ जुड़ गया। जिस घर में उसे इज्जत मिली थी उसी घर के साथ वाबस्ता एक फैसला तारीख का सबसे मुतनाज़े बाब बन गया। एतमाद का वो रिश्ता जो निकाह के जरिए कायम हुआ था अब हमेशा के लिए एक सवाल बन चुका था। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जिस वादे ने इस फैसले को जन्म दिया था उसका अंजाम बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। कहा जाता है कि जहर दिए जाने के बाद जादा बिन्तिल अशथ ने उस इनाम और निकाह की उम्मीद रखी जिसका उसे यकीन दिलाया गया था, मगर इख्तदार की सियासत में वादे हमेशा पूरे नहीं किए जाते। उसे वो मकाम ना मुल्ला जिसका ख्वाब दिखाया गया था। बाज रिवायात में बयान होता है कि जब उसने वादा पूरा करने का मुतालबा किया तो जवाब मिला कि जिस औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ वफादारी ना की उस पर कैसे एतमाद किया जा सकता है। यूं वो इनाम जो उसके फैसले की बुनियाद बना था उसकी पहुंच से दूर ही रहा। दुनियावी लालच जिसे कामयाबी समझा गया था अंजाम में तन्हाई और बदनामी में बदल गया। मदीना और कूफा के हलकों में उसका नाम एहतराम के साथ नहीं बल्कि अफसोस और मलामत के साथ लिया जाने लगा। वक्त के साथ लोग उसे एक ऐसी मिसाल के तौर पर याद करने लगे जहां वक्ती फायदे की ख्वाहिश ने हमेशा की बदनामी को जन्म दिया। तारीख ने उसे किसी फातेह या बासर शख्सियत के तौर पर महफूज नहीं किया बल्कि एक इबरत के किरदार के तौर पर याद रखा। दूसरी तरफ हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी और वफात उम्मत के लिए एक अजीम दर्स बन गई। शदीद तकलीफ के बावजूद आपने इंतकाम का रास्ता इख्तियार नहीं किया। आप जानते थे कि अगर इस वाक़े को बुनियाद बनाकर रद्द अमल जाहिर किया गया तो मुसलमान दोबारा खून रेजी का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए आपने सब्र को तरजीह दी और उम्मत के अमन को अपनी जात पर मुकद्दम रखा। आपकी तदफीन जन्नतुल बकी में हुई और मदीना की फजा देर तक सोगवार रही। अहले बैत के चाहने वालों के दिलों में यह दर्द हमेशा के लिए सब्त हो गया, मगर उसी के साथ आपकी शख्सियत सुलह, बर्दाश्त और आली अखलाक की अलामत बनकर तारीख में जिंदा हो गई। वक्त गुजरता गया, सल्तनतें बदल गईं, हुक्मरान बदलते रहे, मगर दो नाम तारीख में हमेशा मुख्तलिफ अंदाज से महफूज हो गए। एक नाम हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु का जो सब्र, कुर्बानी और इत्तेहाद की अलामत बना, और दूसरा जादा बिन्तिल अशथ का जो दुनियावी लालच के अंजाम की मिसाल बन गया।
ये दास्तान सिर्फ माजी का वाकया नहीं बल्कि एक दायमी सबक है। ये याद दिलाती है कि इक़्तिदार और दौलत की चमक वक्ती होती है, मगर इंसान के फैसले उसकी पहचान को सदियों तक जिंदा रखते हैं। एतमाद अगर टूट जाए तो उसकी बाज़गश्त तारीख के सफ़हात में हमेशा सनाई देती रहती है। यूं जादा बिन्त लशत की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। एक ऐसा इख्तिताम जो बताता है कि बाज़ औक़ात इंसान सब कुछ हासिल करने की कोशिश में अपनी इज्जत हमेशा के लिए खो देता है। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो और आप इस्लामी तारीख के ऐसे ही हैरत अंगेज, सबक आमोज और तहकीक पर मबनी वाक़यात देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हौसला है और हमें मजीद बेहतरीन वीडियोस बनाने की तरगीब देती है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।